Hello everyone, welcome back to my channel and the next chapter of NCERT reading is here. आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, बहुत कंसाइज हो चुका है न्यू एनसीईआरटी में अकॉर्डिंग टू द ओल्ड एनसीईआरटी एंड इतना बड़ा बचा ही नहीं है क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ वाला पोर्शन पूरा कट ऑफ हो चुका है। ठीक है, पढ़ते हैं। छोटा सा चैप्टर ही हो गया, अब तो जल्दी कवर हो जाएगा। You can very easily see the structural similarities and variation in the external morphology of the larger living organism, both plant and animal. Similarly, if we were to study the internal structure, one also finds several similarities as well as differences. This chapter introduces you to the internal structure and functional organization of higher plants. Such of internal structure of plants is called anatomy. Basically ये anatomy की definition है कि anatomy होता क्या है। ठीक है, plants have cell as the basic unit. Cell are organized into tissues and in turn the tissue are organized into organs. Different organs in a plant show differences in their internal structure. Within angiosperm, the monocot and dicot are also seen to be anatomically different. Internal structure also show adaptations to diverse environment. तो अब इसमें कुछ बचा नहीं है, जैसे कि देखिए ना 6.1 एंड 6.2 टिश्यू सिस्टम और एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडस एंड मोनोकोटिलेडन्स प्लांट। Tissue system. We were discussing type of tissue based on the type of cells present. Let us now consider how tissues vary depending on their location in the plant body. Their structure and function would also be dependent on location. On the basis of their structure and location, there are three type of tissue system. These are epidermal tissue, the ground tissue or fundamental tissue system, and the vascular tissue or conducting tissue system. फर्स्ट पे तीन बता दिए उन्होंने और पहला वो पढ़ रहे हैं अब। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी एंड कंप्राइजेज एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा एंड द एपिडर्मल appendages, the trichomes and hairs. The epidermis is the outermost layer of the primary plant body. It is made up of elongated, compactly arranged cells which form a continuous layer. एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, बहुत बेसिक बात है। इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज सेल होते हैं, कॉन्टिन्यूस लेयर बना रहे होते हैं। एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर। एपिडर्मल टिश्यू आर पैरेन्काइमेटस। ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन से टिश्यू कौन से हैं, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। विच अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल इन अ लार्ज वैक्यूल. The outside of the epidermis is often covered with a waxy thick layer called the cuticle which prevent the loss of water. Cuticle जो है वो loss of water prevent करती है, इस पे PYQ है। Cuticle is absent in roots क्योंकि वहाँ पर तो कोई लॉस ऑफ वाटर होने का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो वहाँ पे रूट्स नहीं होती। स्टोमेटा स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, स्टोमेटा का फंक्शन बता दिया। each stroma is composed of two bean-shaped cells called guard cells, which enclose stomatal pore. In grasses, the guard cells are dumbbell-shaped. The outer wall of guard cell away from the stomatal pore are thin, and the inner wall towards the stomatal pore are highly thickened. The guard cell process chloroplast and regulate the opening and closing of स्ट्रोमेटा। गार्ड सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं और वही ओपनिंग और क्लोजिंग का ध्यान भी रखता है। समटाइम्स अ फ्यू एपिडर्मल सेल्स इन द विसिनिटी ऑफ द गार्ड सेल बिकम स्पेशलाइज इन दियर शेप एंड साइज आर नोन एज सब्सिडरी सेल्स। ठीक है, द स्टोमेटल अपार्चर गार्ड सेल्स एंड द सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स आर टुगेदर कॉल्ड स्टोमेटल अपरेटस। इन सब चीज़ों को मिला के स्टोमेटल अपरेटर, गार्ड सेल, सराउंडिंग सब्सिडरी सेल, स्टोमेटल अपरेटस बोला जाता है। ठीक है, एपिडर्मल सेल्स आउटर मोस्ट लेयर हो गई। सब्सिडरी ये ग्रीन वाला पोर्शन, क्लोरोप्लास्ट ये गोले गोले दिखाए गए हैं। गार्ड सेल ये आउटर लाइनिंग को गार्ड सेल दिखाया गया है। स्टोमेटल पोर, अब बीन शेप वाले में स्टोमेटल पोर होता है और डम्बल शेप वाले में नहीं होता। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी आता है, बहुत रेयर। The cell of epidermis bear a number of hairs
एपिडर्मल लेयर के ऊपर हेयर्स होते हैं। द रूट हेयर आर यूनिसेलुलर इलोंगेशंस ऑफ द एपिडर्मल सेल एंड हेल्प एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। ऑब्वियस बात है। ऑन द स्टेम द एपिडर्मल हेयर आर कॉल्ड ट्राइकोम्स, और इन्हीं रूट हेयर को स्टेम पे ट्राइकोम्स बोल दिया जाता है। द ट्राइकोम्स इन द शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टी सेलुलर। ठीक है, वहाँ पे यूनिसेलुलर है रूट हेयर और यहाँ पे मल्टी सेलुलर। दे मे बी ब्रांच और अनब्रांच एंड सॉफ्ट और स्टिफ। They may even be secretory. The trichome help in preventing water loss due to transpiration. First is completed and the second is ground tissue. All tissue except epidermis vascular bundle constitute the ground tissue. ओके यानी एपिडर्मिस वाले पोर्शन को हटा दें और वेस्कुलर बंडल को हटा दें तो बाकी जो भी कुछ बचा वो ग्राउंड टिश्यू के अंदर आता है। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू सच एज parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Parenchymatous cell are usually present in cortex, pericycle, pith, medullary rays in the primary stem and root. In leaves, the ground tissue consists of thin-walled chloroplast containing cells is called mesophyll. द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल पढ़ लिया, ग्राउंड पढ़ लिया, वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, द वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, द फ्लोएम एंड द जाइलम। द जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कंस्टिट्यूट वेस्कुलर बंडल। फिगर 6.2 आगे देखते हैं अभी। इन डाइकोटिलेडनस स्टेम कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। अब डाइकोट में प्रेजेंट होती है स्टेम में कैम्बियम। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ करवानी होती है और सेकेंडरी ग्रोथ करवाने के लिए कैम्बियम इज मैंडेटरी। सच वेस्कुलर बंडल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम प्रोसेस द एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू एंड हेंस आर कॉल्ड ओपन वेस्कुलर बंडल। जिसमें होती है उसे ओपन कहते हैं, जिसमें नहीं होती उसे क्लोज कहते हैं। ये जिसमें है कंजॉइंट ओपन, कंजॉइंट अभी आगे बताएंगे क्या है, और जिसमें नहीं है वो क्लोज। In the monocotyledons, the vascular bundle have no cambium present in them. Hence, since they do not form secondary tissue, they are referred to as closed. When xylem and phloem within a vascular bundle are arranged in alternate manner along the different radii, the arrangement is called radial, such as in root. ये देखो अलग अलग रेडियस पे हैं, एक ये रेडियस है, एक ये रेडियस है, एक ये रेडियस है। जाइलम अलग रेडियस पे हो गई, फ्लोएम अलग रेडियस पे हो गया, तो उसे रेडियल कहा गया है, जो कि रूट्स में प्रेजेंट होती हैं। इन आगे देखेंगे अभी। इन कंजॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल द जाइलम एंड फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड अलोंग द सेम रेडियस। कंजॉइंट उसे कहा जाता है जहाँ पे सेम रेडियस में होती है, जो कि मोस्टली स्टेम्स में देखा गया है। ठीक है, सच वेस्कुलर बंडल आर कॉमन इन स्टेम एंड लीव्स। द कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल यूजुअली हैव द फ्लोएम लोकेटेड ऑन द आउटर साइड ऑफ द ऑफ जाइलम। जो कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल होते हैं यूजुअली हैव द फ्लोएम, उनमें जो फ्लोएम होता है वो बाहर की साइड पे होता है यूजुअली। एनाटॉमी ऑफ dicotyledons and monocotyledons plant. For a better understanding of tissue organization of roots, stem and leaves, it is convenient to study the transverse section of the mature zone of these organs. Dicotyledons root. Look at figure 6.38 shows the transverse section of the sunflower root. The internal tissue organization is as follows. The outermost layer is epiblema. Epiblema and epidermis is same. Many of the cell of epiblema protrude in the form of unicellular root hair. अभी ऊपर भी पढ़ा था कि रूट के पास यूनिसेलुलर रूट हेयर होते हैं. द कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल layers of thin walled parenchymatous cell with intercellular spaces. The innermost layer of the cortex is called endodermis. ये वाली दिखाई गई है ये. It comprises a single layer of barrel shaped cell without any intercellular spaces. Barrel shaped है ना ये, और intercellular spaces है ही नहीं, एकदम side by side line में खड़े हुए हैं. The tangential as well as radial wall of the endodermal cell have a deposition of water impermeable waxy material sovereign in the form of Casparian strip. इसके साइड में एक वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल की
तुबरिन नाम की एक लेयर होती है जो कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस लाइज अ फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल। अब इसके अंदर ये जो देखोगे ये है पैरेन्काइमेटस सेल। ठीक है, रेफर टू एज पेरीसाइकल, जिसे पेरीसाइकल भी बोला गया है। हाँ, ये मार्क्ड है पेरीसाइकल। इनिशिएशन ऑफ लेटरल एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दीज सेल्स। और इन्हीं सेल्स में सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान जो सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल बनते हैं वो यहीं बनते हैं। द सेल इज स्मॉल एंड इन द पिथ इज स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस। पिथ ये वाला रीजन को बोलते हैं स्मॉल को। ठीक है, और छोटा होता है बल्कि ये, और दिखता भी नहीं है इतना ज़्यादा। ठीक है, द पैरेन्काइमेटस सेल विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम आर कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू। जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि फ्लोएम यहाँ दिखाया नहीं गया है प्रॉपर। ठीक है, बस ऐसे मार्क कर दिया है कि यहाँ कहीं फ्लोएम है, मान लो यहाँ कहीं फ्लोएम है। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो टिश्यूज़ हैं वो कंजक्टिव टिश्यूज़ हैं। ठीक है, ये वाले जो भी इसके बीच में टिश्यू होंगे वो कंजक्टिव टिश्यू होंगे। बहुत गुचड़ मुचड़ हो गई, साफ कर देते हैं इसे। ठीक है, देयर आर यूजुअली 2 to 4 जाइलम, 2 से 4 होते हैं। इसमें 4 जाइलम दिखाए गए हैं। एंड फ्लोएम पैचेस, फ्लोएम तो दिखाया ही नहीं गया है सही से। लेटर अ कैम्बियम रिंग डेवलप बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, और इन जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम रिंग आ जाती है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अगर वो सेकेंडरी ग्रोथ वाला पोर्शन होता है तो उसमें हम वो पढ़ते, बट अब नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे। ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल एंड पिथ कॉन्स्टिट्यूट द स्टील। यानी एंडोडर्मिस के अंदर जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल, पिथ, उन्हें एक साथ मिला के स्टील बोल देते हैं। नेक्स्ट आते हैं मोनोकोटिलेडनस रूट। The anatomy of the monocot root is similar to the dicot in many aspects. कुछ differences होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। It has epidermis, cortex, endodermis, pericycle, vascular bundle and pith. जो dicot के पास था वो सब monocot के पास है। As compared to the dicot root which have fewer xylem bundle, there are usually more than 6 polyarch xylem bundle in the monocot root. वहाँ पे 2 से 4 थे, यहाँ पे 6 से ज़्यादा होते हैं। दिखाया अभी तो 8 दिखाए इसमें। ठीक है, पिथ इज लार्ज, वहाँ पे पिथ स्मॉल थी, यहाँ पे पिथ लार्ज है। एंड वेल डेवलप, वहाँ पे इनकॉन्स्पिक्यूअस थी, ज़्यादा डेवलप नहीं थी। मोनोकोटिलेडनस रूट डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ। क्यों नहीं होती? क्योंकि वेस्कुलर बंडल के पास कैम्बियम नहीं होता, क्लोज टाइप के होते हैं। ठीक है, dicotyledonous stem. The transverse section of a typical young dicotyledonous stem shows the epidermis is the outermost protective layer of the stem. Okay, covered with a thin layer of cuticle. Cuticle से cover हुई भी होती है. It may be trichomes and a few stomata. The cell arranged in multiple layers between epidermis and pericycle constitute the cortex. Epidermis और पेरिसाइकल के बीच में जो सेल हैं वो कॉर्टेक्स कंसीडर किए गए हैं। कॉर्टेक्स के सेल कंस्टिट्यूट कॉर्टेक्स के सेल्स में आते हैं और उन्हें मिला जुला के कॉर्टेक्स बोला जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन। द आउटर हाइपोडर्मिस, बाहर वाला हिस्सा हाइपोडर्मिस। इस वाले डायग्राम में हाइपोडर्मिस दिखाया, इसमें नहीं दिखाया। ठीक है, ये वाला हिस्सा हाइपोडर्मिस कंस्टिट्यूट ऑफ फ्यू लेयर ऑफ कोलेनकाइमेटस सेल। ये क्वेश्चन आता है हाइपोडर्मिस किस सेल्स की बनी हुई होती है? कोलेनकाइमेटस की। जस्ट बिलो द एपिडर्मिस विच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द यंग स्टेम। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए होती है। कॉर्टिकल लेयर्स बिलो हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ राउंड थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल विद कॉन्स्पिक्यूअस इंटरसेलुलर स्पेसेस। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस. द सेल ऑफ एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन एंड द लेयर इज ऑल्सो रेफर टू एज स्टार्च शीथ। एलन के टेस्ट में मुझे ये क्वेश्चन ध्यान है, PY क्योंकि I don't remember properly. Pericycle is present on the inner side of the endodermis and above the phloem in the form of semilunar patches of sclerenchyma. In between the vascular bundle, there are few layers of radially placed parenchymatous cell which constitute medullary rays. A large number of vascular bundle are arranged in a ring. The ring arrangement, ये इसका एक फीचर है। इस पे क्वेश्चन भी है कि डिस्टिंक्टिव फीचर समझ लीजिए।
of vascular bundle is a characteristic stem. Each vascular bundle is conjoined, open and with endark protoxylem. और जो रूट होती है वो एक्सार्च होती है, स्टेम जो होती है वो एंडार्क होती है. ठीक है. अ लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पेरेंट with large intercellular spaces which occupy the central position of the stem constitute the pith. Next is monocotyledon stem. The monocot stem has a scleron chimetis hypodermis. वहाँ पे कॉलन काइमेटिस था, अभी हमने डाइकोट में देखा, और यहाँ पे स्क्लेरन काइमेटिस है. अ लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल ईच सराउंडेड बाय अ स्क्लेरन काइमेटिस बंडल शीट. यानी जो वेस्कुलर बंडल है उनके ऊपर भी स्क्लेरन काइमेटिस बंडल एक लेयर है. ठीक है ना. लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू वेस्कुलर बंडल आर कंजॉइंड एंड क्लोज. पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड वंस. बीच वाले जो होंगे वो बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू द साइडो वालों से, पेरिफेरी वाले से. द फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट एंड वाटर कंटेनिंग कैविटी आर प्रेजेंट विद इन द वेस्कुलर बंडल. ये भी एक इसका डिस्टिंक्टिव फीचर है. ठीक है. और स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल भी एक डिस्टिंक्टिव फीचर में कंसीडर किया जाता है. ये बीच वाले बड़े, साइड वाले छोटे 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 छोटे, बाकी स्कैटर्ड है, सब में बिखरे हुए हैं. एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है. जैसे इसमें रिंग बनी हुई है प्रॉपर, उसमें कोई अरेंजमेंट नहीं है. नेक्स्ट इज डॉर्सी वेंट्रल डाइकोटिलेडोनस लीफ. डॉर्सी वेंट्रल यानी दोनों साइड, डॉर्सी वेंट्रल यानी डाइकोट. ठीक है. The vertical section of a dorsiventral leaf through the lamina shows three main parts, namely epidermis, mesophyll, and vascular bundle. Epidermis, mesophyll, and vascular bundle. ठीक है. The epidermis which cover both the upper surface एडेक्सियल, ऊपर वाले को एडेक्सियल, नीचे वाले को एबैक्सियल बोला जाता है. ऑफ द लीफ हैज अ कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल. द एबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर मोर स्टोमेटा. नीचे वाले में ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं एज कम्पेयर टू ऊपर वाले के. द लेटर में इवन लैक. और ऐसा होता है कि ऊपर वाले में है भी नहीं है, इतना कुछ वो नहीं है. द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड द मेसोफिल. इसके बीच के टिश्यूज को मेसोफिल कहा गया है. मेसोफिल विच प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. मेसोफिल का काम फोटोसिंथेसिस करना है. is made up of parenchyma. It has two type of cell, the palisade parenchyma and the spongy parenchyma. मेसोफिल के पास दो तरीके के सेल हैं. पैलिसेड, ये वाले पैलिसेड सिलेंड्रिकल वाले, और ये गोल 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 विद स्पेसेस स्पॉन्जी मेसोफिल. ठीक है. द एडेक्सियली प्लेस्ड palisade parenchyma is made of elongated cell which are arranged vertically and parallel to each other. The oval or round and loosely arranged spongy parenchyma is situated below the palisade cell and extend to the lower epidermis. There are numerous large space and air cavity between these cell. Vascular system include vascular bundle which can be seen in the veins and midriff. The size of the vascular bundle are dependent on the side of the veins. यानी वेन जितनी बड़ी होगी उसमें उतना बड़ा वेस्कुलर बंडल होगा. अगर वेन छोटी है, वेनलेट्स हैं, तो उसमें ऑब्वियसली बात है छोटा ही वेस्कुलर बंडल होगा. द वेन vary in the thickness in the reticulate venation of the dicot. Leaves the vascular bundle are surrounded by a layer of thick walled bundle sheath cell. Look at 6.5a हमने देख लिया. And find the position of xylem in the vascular bundle. Position of xylem in the vascular bundle. xylem ये वाला है. xylem ये वाला इन्होंने यहाँ पर कहीं, जो कि दिखाया नहीं है, बस मेंशन कर दिया है फ्लोएम में. आगे बढ़ते हैं. आइसोबाइलेटरल मोनोकोटिलेडोनस लीफ. द एनाटॉमी ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ द डॉर्सिवेंट्रल लीफ इन मेनी वेज. इट शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस. इन एन आइसोबाइलेटरल लीफ the stomata are present on both the surface of the epidermis. The mesophyll is not differentiated into palisade and spongy parenchyma. दोनों पर होते हैं, दोनों एडेक्सियल एबैक्सियल दोनों सरफेस पे स्टोमेटा पाए जाते हैं. फिगर भी देख लेते हैं. और मेसोफिल डिवाइड नहीं होता स्पॉन्जी और उसमें. ठीक है. यहाँ पे भी स्टोमेटा दिखाया है इसमें, और यहाँ पे भी स्टोमेटा दिखाया है इसमें. In grasses, certain adexal epidermal cell along the veins modify themselves to large, empty, colorless. These are called bulliform cells.
इनमें अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं नीचे वाले सेल, बुलीफॉर्म सेल्स कह दिया जाता है, ठीक है, जो कि डाइकॉट में नहीं थे और इसमें हैं, ठीक है। बुलीफॉर्म सेल्स दिखाए नहीं है मार्क करके डायग्राम में, बस बता दिया गया है कि मॉडिफाइड सेल्स होते हैं, ठीक है। When the bulliform cell in the leaf have absorbed water and are turgid, the leaf surface is exposed. When they are flaccid due to water stress, they make the leaf curl inwards and minimize water loss. यानी जब इनके पास बहुत सारा पानी होता है, ये लीफ सरफेस को पूरा एक्सपोज कर देते हैं कि ये लो बहुत सारा पानी है, और जब नहीं होता तो उसको कर्ल करवाते हैं, क्योंकि मिनिमाइज करना होता है वाटर लॉस. The pallor venation in monocot leaves is reflected in the near similar size of the vascular bundle, except in the main veins as seen in vertical section of the leaves. Okay, जो मेन ऐसे वाला पैरेलल अरेंजमेंट होता है मोनोकॉट में, तो जो बीच वाली हिस्सा होता है उसमें ज़्यादा नहीं कहेंगे, बड़ा साइज कहेंगे, उसमें बड़ा होता है वेस्कुलर बंडल, बाकियों में देखा गया है कि ऑलमोस्ट सेम साइज का होता है, ठीक है. नेक्स्ट इज समरी, चैप्टर एंड्स. एनाटॉमिकल. A plant is made of different kinds of tissue. The plant tissue are broadly classified into meristematic, apical, lateral, and intercalary, and permanent, simple and complex. Assimilation of food and storage, transport of water, mineral and photosynthesis, and mechanical support are the main function of tissue. There are three types of tissue system: epidermal, ground, and vascular. The epidermal tissue system are made of epidermal cells, stomata, and the epidermal appendages. The ground tissue system form the main bulk of the plant. It is divided into three zones: cortex, pericycle, and pith. The vascular tissue system is formed by the xylem and phloem on the basis of presence of cambium. Location of xylem and phloem. The vascular bundle are of different type. The vascular bundle form the conducting tissue and translocate water, mineral, and food material. Monocotyledonous and dicotyledonous plants show marked variation in their internal structure. They differ in type, number, and location of vascular bundle. The secondary growth occur in most of the dicotyledonous root and stem. चैप्टर एंड्स. बहुत छोटा चैप्टर कर दिया है भाई, और पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो बहुत बड़ा चैप्टर था ये. खैर, क्यूट चैप्टर हो गया है, छोटा छोटा सा, और इतना कुछ हार्ड इसमें बचा नहीं है. बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल. बाय बाय. कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड एंड